علی بابا اور 40 چور۔ بچوں، بہت دنوں کی بات ہے، ایران کے ایک شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑے کا نام قاسم اور چھوٹے کا علی بابا تھا۔ قاسم جتنا امیر تھا، علی بابا اتنا ہی غریب تھا۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور پھر ان کو بازار میں بیچتا اور اسی طرح سے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا تھا۔ لیکن ایک دن جب علی بابا بہت ہی تھک گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، مجھ پر بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ کب تک میں اس طرح لکڑیاں کاٹتا رہوں گا؟ ابھی علی بابا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو گھوڑوں کی چاپ کی آواز سنائی دی۔ علی بابا بہت گھبرا گیا۔ اس نے کہا، اس طرف کون لوگ آ رہے ہیں؟ اگر ان لوگوں نے میری لکڑیاں میرے سے چھین لی تو؟ لکڑیوں کو چھپا کر مجھے کسی درخت کے نیچے چھپ جانا چاہیے۔ کھل جا سم سم۔ علی بابا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وہ بولا، خدایا، یہ کون لوگ ہیں؟ خدایا، یہ کیسا دروازہ ہے؟ کتنا بڑا غار ہے جس میں 40 آدمی اپنے گھوڑوں سمیت گھس گئے۔ بند ہو جا سم سم۔ ابھی علی بابا سوچ ہی رہا تھا کہ غار کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ بند ہو جا سم سم۔ چلو ساتھیو۔ علی بابا اتنے بڑے غار کو کھلتا ہوا دیکھ کر اور ایک سردار جس کے ساتھ 40 چور تھے بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا، میں بھی تو ذرا دیکھوں یہ ماجرا کیا ہے۔ کھل جا سم سم۔ غار کھل گیا۔ علی بابا نے ڈرتے ڈرتے اندر جانا شروع کیا۔ اندر پہنچ کر علی بابا نے دیکھا، او خدایا، اتنی دولت، اتنی دولت! یہاں تو ہر طرف اشرفیاں ہی اشرفیاں ہیں۔ میں امیر ہو گیا، میں امیر ہو گیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا قبول کر لی۔ علی بابا نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اپنے ساتھ رکھ لی اور جلدی سے باہر جا کر یہ کہا، بند ہو جا سم سم۔ اور اس طرح سے غار بند ہو گیا اور علی بابا اپنے اشرفیاں لے کر گھر کی طرف چلا گیا۔ یا میرے اللہ، اتنی ساری اشرفیاں! مجھے تو یقین نہیں آتا۔ یہ دیکھو فاطمہ، کتنی ساری اشرفیاں ہیں۔ اب ہم امیر ہو جائیں گے۔ مرجینا کہاں ہے؟ اس کو کہو کہ قاسم بھائی کے گھر سے ترازو لے آئے، وزن تو کر لیں، دیکھے تو صحیح کتنی دولت ہے ہمارے پاس۔ مرجینا ترازو لینے کے لیے قاسم بھائی کے گھر چلی گئی اور جلدی سے ترازو لے کر واپس چلی آئی۔ علی بابا اور فاطمہ نے اشرفیوں کو وزن کر کے جلدی سے ترازو کو واپس بھیج دیا۔ آپ کو کچھ پتہ ہے، مرجینا آئی تھی ترازو لینے۔ لکڑیاں تولنے کے لیے ترازو لے گئی ہے؟ ارے نہیں، کوئی بہت ہی خاص چیز معلوم ہوتی ہے۔ میں نے بہت پوچھا مگر وہ ٹالتی رہی، شاید وہ آ گئی۔ میں ترازو لے آئی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کیا اشرفی؟ میں نے ترازو میں موم لگا دی تھی، اسی میں چپکی ہوئی آئی ہے۔ پتہ تو کرے اسے اتنی اشرفیاں ملی کہاں سے؟ علی بابا نے ساری باتیں قاسم کو بتا دیں۔ ہاں تو علی بابا، تم نے کیا کہا؟ کھل جا سم سم، اور اگر دروازہ بند کرنا ہو تو کیا کہنا ہے؟ بند ہو جا سم سم۔ قاسم دوسرے ہی دن اپنے گھوڑے لے کر وہاں چلا گیا۔ کھل جا، کیا بتایا تھا؟ کھل جا سم سم۔ بند ہو جا سم سم۔ قاسم خوشی خوشی اندر جانے لگا۔ جب قاسم نے اتنی بہت ساری دولت اکٹھی دیکھی تو کہنے لگا، اتنی دولت! میں تو دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا۔ مجھے جا کر اور گھوڑے لے آنے چاہیے۔ کھل
खुल जा, खुल जा। क्या 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 कहा था अली बाबा ने? खुल जा, दरवाजा खुल। क्या 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 कहा था अली बाबा ने? नहीं नहीं, ओ खुदाया, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? खुल जा मेरे भाई, खुल जा मेरे बाप, खुल जा, खुदा के लिए खुल जा, खुल जा। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? 40 चोर भी आ गए। मुझे चुप जाना चाहिए, मुझे चुप जाना चाहिए। वो मुझे जान से मार देंगे, वो मुझे जान से मार देंगे। खुल जा सिम सिम। हाय, ये क्या? ये कौन यहाँ आया है? कौन है जो हमारे माल से चोरी करता है? तलाश करो। बहुत अच्छा सरदार। मिल गया सरदार, मिल गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। चोर भाई मुझे माफ कर दीजिए। इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। चोरों ने उसकी एक ना सुनी और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कासिम की बीवी इंतजार करते करते थक गई, इसलिए वो अली बाबा के घर चली गई। क्या हुआ भाभी, इतनी परेशान क्यों हैं? तुम्हारे भाई सुबह से गए हुए हैं, रात हो गई है, अब तक वापस नहीं आए। न जाने मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। आप घर जाकर आराम कीजिए, मैं पता लगा कर आता हूँ। अली बाबा जब गार में पहुंचा तो अपने भाई कासिम की लाश को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। ओह या अल्लाह, ओह। बड़ी मुश्किल से उसने लाश के तमाम टुकड़ों को जमा किया और बोरी में डालकर घर ले आया और अपनी बीवी से मशवरा किया। लाश को अच्छी तरह टांके लगाने के बाद दफन करना चाहिए, वरना हमारे लिए भी मसला हो सकता है। मर्जीना, तुम जाकर अच्छा सा मोची ले आओ, लेकिन एहतियात के साथ, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जी मालिक, अभी जाती हूँ। मर्जीना कोई अच्छा सा मोची ढूंढने के लिए निकल पड़ी। आपको मालूम है मोची बाबा कहाँ बैठते हैं? वो सामने एक गली में। मोची बाबा, मैं आपके लिए 10 अशरफियाँ लाई हूँ। ये तो मेरी सारी उम्र की कमाई से भी ज्यादा है बेटी। ये बताओ काम क्या है, कहाँ जाना है? काम भी मालूम हो जाएगा। आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे साथ जाना होगा। मुझे मंजूर है। लाइए, अब मैं पट्टी खोल दूं। ये क्या? इन टुकड़ों को जोड़कर इस तरह टांके लगाने हैं कि किसी को शुभा तक ना हो। अच्छा बेटी, कयामत के दिन करीब आ गए हैं। और फिर मोची ने कासिम की लाश के सारे टुकड़ों को जमा किया और उनको अच्छी तरह सी कर जोड़ दिया और फिर उसको दफन कर दिया। दूसरी तरफ कई दिन बाद 40 चोर गार में पहुंचे तो उन्होंने देखा। ये क्या? उसकी लाश कहाँ गायब हो गई? सरकार, मालूम होता है कि हमारे इस ठिकाने के बारे में किसी और को भी मालूम हो गया है, लेकिन किसी की कटी हुई लाश की खबर भी नहीं आई। बहुत चालाक आदमी से वास्ता पड़ा है। शहर के तमाम मोचियों से राब्ता करो। बाबा जी, तुम सिर्फ जूते ही सीते हो या कुछ और भी? मैं तो इंसान का चमड़ा भी सी सकता हूँ बाबूजी। अच्छा, थोड़े दिनों की तो बात है, एक लाश के टुकड़ों में टांके लगाए थे। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? 20 अशरफियां दूंगा। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, आप भी बांध दीजिए, मैं अंदाजे से जाने की कोशिश करता हूँ। अभी और आगे। नहीं, ये भी नहीं। यही 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 है वो मकान। मैं इस पर सफेद निशान लगाए देता हूँ। हाय, अरे ये क्या? हमारे दरवाजे पर ये निशान कैसा है? ऐसा निशान तो किसी और के दरवाजे पर नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, मैं लगाए देती हूँ। सरदार, मैं घर पर सफेद निशान लगा आया हूँ। मैं खुद देखना चाहता हूँ। ये क्या? यहाँ तो हर मकान के दरवाजे पर निशान लगा हुआ है। शर्म आनी चाहिए, तुम लोग एक घर का पता नहीं लगा सकते। सरदार, इस बार मैं कोशिश करता हूँ। जिस तरह भी हो, मुझे उसके घर का पता चाहिए। वो भी उसी मोची के पास चला गया। यही 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 है वो मकान। मैं इस बार लाल निशान लगाता हूँ। अच्छा, इस बार कोई लाल निशान लगा गया है। कोई बात नहीं, मैं भी हर दरवाजे पे लाल निशान लगाए देती हूँ। सरदार, मैं लाल निशान लगा कर आया हूँ। चल कर देखूं।
यहाँ फिर सारे दरवाजों पे लाल निशान लगे हुए हैं। बहुत ही चालाक आदमी है। इस बार मैं खुद उस मोची के पास जाऊंगा। और इस बार सरदार खुद मोची की आंखों पर पट्टी बांधकर मकान की तलाश में निकला। मुझे इस मकान को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। सारे मर्तबान आ गए। इनमें से एक में तेल होगा और बाकी में तुम लोग। हम लोग हम लोग हम लोग हाँ, हम तेल के सौदागर बन के अली बाबा के मेहमान होंगे। रात को जब मैं तुम लोगों को आवाज दूंगा तो फिर तुम सब मिलकर उस पर हमला कर देना और हम अपनी सारी दौलत उसके घर से वापस ले आएंगे। हा 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 हा। बहुत अच्छी तरकीब है। वो आपको मेहमान बनाने पर मान जाएगा? जब सरदार ने अली बाबा से पूछा तो अली बाबा ने कहा, क्यों नहीं, जरूर जरूर। अली बाबा का दरवाजा हर मुसाफिर के लिए खुला है। आप मेरे मेहमान होंगे, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। और ये मर्तबान रख दिए जाएंगे, आप इनकी फिक्र ना करें। खाना तैयार है मालिक। मर्जीना ने सौदागर के लिए दावत तैयार की। अली बाबा सौदागर को लेकर अपने घर में आ गया। मर्जीना, चरागों में रोशनी इतनी कम क्यों है? मेहमान क्या कहेंगे? जाओ और तेल डाल कर लाओ। घर में तो तेल है नहीं। इस वक्त मैं कहाँ से तेल लेकर आऊं? क्यों ना सौदागर के मर्तबान से तेल निकाल लूं। इस मर्तबान से निकाल लेती हूँ। क्या हुक्म है सरदार, बाहर आ जाऊं? या अल्लाह, इसमें तो आदमी बंद है। नहीं, अभी नहीं। दूसरे में देखती हूँ। क्या हुक्म है सरदार, हमला कर दूं? अरे, इसमें भी नहीं, अभी नहीं। या मेरे मालिक, ये क्या माजरा है? कहीं मालिक की जिंदगी खतरे में तो नहीं? इस आखिरी मर्तबान में और देख लूं। ओह, इसमें तेल है। इनकी यही सजा है कि यही तेल खूब गरम करके इन सब पर डाल दिया जाए। एक एक करके मर्जीना ने तमाम मर्तबानों में तेल डाल दिया। अब तुम्हारे सरदार की खबर लेती हूँ। अली बाबा और सरदार आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। मर्जीना अंदर आई तो अली बाबा ने पूछा, तेल ले आई मर्जीना? जी मालिक, अब हम रोशनी में सब कुछ देख सकेंगे। मर्जीना गौर से सौदागर को देखने लगी। सौदागर मालिक की तरफ क्यों बढ़ रहा है? उसका हाथ छुरी पर क्यों है? क्या ये मालिक को मारने तो नहीं लगा? मैं इसको खुद क्यों ना ख़त्म कर दूं? और फिर मर्जीना ने चोरों के सरदार पर हमला कर दिया। मर्जीना, ये क्या किया तुमने? मेरे मेहमान पर वार कर दिया। मालिक, ये मेहमान नहीं, दुश्मन है। अगर मैं इस पर वार ना करती तो ये आप पर वार कर देता। और फिर मर्जीना ने सारी बातें अली बाबा को बता दी। अली बाबा उसकी वफादारी से बहुत खुश हुआ, इनाम व इकराम भी दिया और इसके अलावा उसने अपने बेटे अब्दुल्ला से मर्जीना की शादी कर दी। इस तरह वो हंसी खुशी ज़िंदगी के दिन गुजारने लगे। तो प्यारे बच्चों, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? तो हमने इस स्टोरी से ये सीखा कि हमें लालच नहीं करनी है। इसके अलावा बगैर पूछे किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए है, जो कि स्टोरी में लोग ऐसे कर रहे थे, लेकिन उसकी वजह से ट्रबल हो सकता है ना। तो इसलिए हमें किसी से उसके बगैर पूछे कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा हमने मर्जीना का कैरेक्टर देखा कि मर्जीना एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी और उसने कैसे अपने ओनर की हेल्प की। इसके अलावा वो बहुत विजिलेंट भी थी। और बच्चों, पुराने ज़माने में होटल्स नहीं हुआ करते थे, तो जब भी कोई मेहमान आया करता था किसी के गांव में, तो सब लोग उसको ऑफ़र करते थे कि हमारे घर में आके आप स्टे कर सकते हैं। तो अली बाबा ने भी बहुत हॉस्पिटैलिटी से अपने गेस्ट को वेलकम किया था और उसका ख्याल रखा था। इसके अलावा आपने जो कुछ सीखा उसको मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।